What are the barriers to a healthy collaboration among all the stakeholders? जब रेफरल सिस्टम की बात होती है तो उसके एक अच्छे इनेकात के लिए क्या मसाइल हैं जो दरपेश आ सकते हैं? सबसे पहले तो जिम्मेदारी लेने की बात है. That who takes responsibility for enacting the referral system, guiding students, and then soliciting help from outside? Who takes responsibility for what? जिम्मेदारी लेना और इस चीज़ का एहसास करना कि प्रॉब्लम है और उसका हल तलाश करना चाहिए, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मरहला है और ये वो जिम्मेदाराना रवैया है जिसके लिए स्कूल को तैयार होना चाहिए और मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स जो इन्वॉल्व्ड हैं किसी भी बच्चे की एजुकेशन में, दे शुड फील दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. Why do we always look into those students and look into the issues of those students who come at a specific level of normality or who reach a specific level of normality? Why don't we think of those students who are either below or either above this normal range? When we talk of education, we talk of education for all, not for these designated few students who come in the normal band and you do keep doing your routine matter of fact teaching and learning to make them reach a required level. उन बच्चों का क्या जो कि इस रेंज से या तो बहुत नीचे हैं या केसेस इतने सवियर हैं कि उनको बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है. तो जब आप एक जिम्मेदाराना रवैये के साथ काम करते हैं तो फिर आप हर बच्चे की जिम्मेदारी लेना अपनी जिम्मेदारी समझते हैं. तो जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं और जहाँ पर मुख्तलिफ प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व होते हैं तो इफेक्टिवनेस वहाँ नहीं होती जब हर कोई जिम्मेदारी दूसरे पे डालने की कोशिश करता है या ये कहता है कि मेरा काम पढ़ाना है, मेरा काम प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन नहीं है. जब प्रिंसिपल ये कहता है मेरा काम स्कूल मैनेज करना है, मेरा काम जो है वो ये नहीं है कि मैं साइकेट्रिस्ट को या साइकोलॉजिस्ट को स्कूल के अंदर लेकर आऊं. सो वन हैज़ टू फर्स्ट सी what the problem is and according to that one has to feel the responsibility to solve the problem. तो जहाँ बहुत से professionals engaged होंगे किसी भी एक काम के करने पे वहाँ the issue is the problem is that nobody wants to take a specific responsibility. तो वहाँ पर well defined measures का होना ज़रूरी है, policies का होना ज़रूरी है और designation ज़रूरी है. Who does what? That is something which is extremely important. किसी भी प्रोफेशनल प्लेस के ऊपर टर्म्स ऑफ रेफरेंस का डेवलप करना बहुत ज़रूरी है. कौन क्या काम करेगा और इसके साथ साथ जहाँ पर बिहेवियरल इश्यूज की बात आती है तो वहाँ पर सबकी इन्वॉल्वमेंट इम्पॉर्टेंट है. इसमें पेरेंट्स भी आ जाते हैं क्योंकि पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट इसलिए ज़रूरी है बिकॉज दे आर बेसिकली आर ब्रिंगिंग देयर चिल्ड्रन and they are giving them those required values which are expected in any society. So when students come to school, they come with a particular value system. And that is why parents become directly involved in their child's education. Every stakeholder has to take specific responsibility. Only then we can talk about the effectiveness. Otherwise, the same people, they become again pose problems in the successful demonstration of referral systems. इसके अलावा बाज़ औक़ात स्ट्रक्चरल बैरियर्स हैं जिनका हम शिकार होते हैं. जब हम स्ट्रक्चरल बैरियर्स की बात करते हैं तो इससे मुराद ये है कि क्या स्कूल में ऐसी पॉलिसीज़ मौजूद हैं जो इन रेफरल सिस्टम्स को सपोर्ट कर रही हैं या क्या आपने स्कूल के अंदर ऐसी पॉलिसी बनाई है जिसके तहत अगर कोई ख़ास मसला दरपेश आए तो उसको सही तौर पर जांचा जाए, परखा जाए और फिर सपोर्ट सर्विसेज ली जाएं. सो पॉलिसीज़ का होना भी बहुत ज़रूरी है. In the wake of no policy, then it becomes highly problematic of how to designate the problem and then who does what. So when the policies are in place, then it becomes extremely easy to go in a systematic manner to solve the problem. Otherwise, problem stays there. Rather, it becomes a bigger problem with the passage of time. So one thing is that we must take responsibility for all the actions that we do in the school and then we make proper policies so that referrals are done in a systematic manner. इसके अलावा जो एक इशू बहुत अहम है वो confidentiality का है. If stakeholders are unable to keep things to themselves, then it shows a degree of unprofessionalism. जहाँ पर joint collaboration की बात आती है, जहाँ पर हम ये देखते हैं
कि लोग मिलकर काम कर रहे हैं, वहां एक दूसरे की बात अपने तक महदूद रखना भी ज़रूरी है. दैट इज़ पार्ट ऑफ बीइंग अ प्रोफेशनल. वहां पर जब तक प्रॉपर लोगों की ट्रेनिंग नहीं की जाएगी, उनको ये सिखाया नहीं जाएगा कि अगर किसी का कोई मसला है तो उसको अपने तक महदूद रखें, उसकी तशहीर ना करें, तो वहां पर फिर मसाइल बरकरार रहेंगे. इट बिकम्स अ बिग बैरियर. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द बैरियर्स अबाउट रेफरल सिस्टम्स, तो वहां पर हैविंग अ सर्टेन डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म और इसके साथ साथ हैविंग प्रॉपर स्कूल पॉलिसीज एंड देन मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, दीज आर सम फैक्टर्स that may become barriers if they are not attended to properly.